My voice is coming clearly to you all. Is my voice coming clear? We'll be starting session in another 1 or 2 minutes. Good evening, everyone. Welcome to the welcome you all. So we'll be starting with the 4th day of our GST session and the 5th day of the 10 days course. This is the second last day for the GST session. Tomorrow it will be a last class for the GST. Then we will be taking forward the income tax part and the balance of the accounting and business part we have left out. Taking ahead the yesterday's session, where we have learned 3 major topics. First was the registration under GST, which provides the process of GST registration. We have done the live demo of the GST registration, documents required, and the mandatory registration. There we have learned the limit of 20 lakh rupees in case of services, which is we have an exemption. Interstate supply के अंदर GST registration mandatory होता है, but services के case में we have an exemption till 20 lakh rupees. Going forward, we have learned forward charge versus reverse charge. Forward charge means where the supplier is directly depositing the tax to the government, and where reverse charge the supply where the recipient is directly required to deposit the tax to the government. We have learned few services. Important one were sponsorship services, transport services, import of services, then rent a cab, security services, few major services which we usually see in our day-to-day life. Last, we have learned the export under GST. We have export of goods, we have export of services. Export of services have 5 conditions: location of supplier in India, location of recipient outside India, place of supply outside India, currency, foreign currency में पैसा आना चाहिए, and the last condition should be they should not be same entity, they should not be same organization, they should not be head office and branch office. This is what we have learned till date. Taking forward, almost we have covered in last 3 days what are basic provisions of the GST law. For today and tomorrow, we will taking almost the practical aspects of the GST. Yes, obviously, while doing some practical aspects, we will face some issues. For that, we will obviously go back to our theoretical part also, but majorly it will be covering the practical aspects. Starting the day,
We'll start with the documents under GST. Document under GST, as the name suggests, हमने GST की लाइबिलिटी निकालना सीख लिया, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना सीख लिया, बट what are the paper requirement? What actually, how do we actually use to manage? माइंड में तो नंबर चलेंगे नहीं, नंबर तो कहीं ना कहीं पेपर्स पे लिखे होंगे. वो पेपर क्या क्या बनाने होते हैं और किस किस सिचुएशन में बनाने होते हैं. अगर मैं कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या पेपर बनाना होगा जीएसटी के लिए. अगर मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्या पेपर मुझे जीएसटी के लिए बनाना होगा. अगर मैं किसी से रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज ले रहा हूँ तो मुझे क्या पेपर बनाना होगा. अगर मैं किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ, डेबिट नोट दे रहा हूँ, तो वो क्या क्या पेपर मुझे किस किस सिचुएशन में बनाने होंगे. Those all situations we will see वो पेपर जो बनता है उसके अंदर क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पेपर के ऊपर क्या क्या लिखना कंपलसरी है अंडर द जीएसटी लॉ. So you have a table in front of your screen. I have first column says nature of document. Nature of document means the wordings of the nature of document like tax invoice, bill of supply, you cannot change. This is the language what is actually provided by the law. Transaction means क्या ट्रांजेक्शन होगी जब ये डॉक्यूमेंट मुझे बनाना पड़ेगा. एंड द लास्ट कॉलम सेज गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन दी हुई है डॉक्यूमेंट को बनाने की, कि वो टाइमलाइन, वो डॉक्यूमेंट आपको उससे उस टाइमलाइन से पहले ही बनाना होगा. अगर उससे पहले नहीं बनाएगा तो इट विल बी ए नॉन कंप्लायंस ऑफ द जीएसटी लॉ. इट मींस इट इज यू आर अनफॉलोइंग द जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ हैव गिवन द टाइमलाइन कि आपको उसी के अंतर्गत आपको अपना वो डॉक्यूमेंट बनाना होगा. एंड these documents are mandatory to be generated. I am starting one by one. Please listen me very carefully because this is the topic which you will see on the day one of your practical life. पहले दिन जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक आपको फील्ड में देखने को मिलेगा. First transaction says I will read the transaction. Thereafter I will read the nature of document. First transaction says for supply of taxable goods or services or both. Supply means sales. हम सप्लाई के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, वो हम कल जानेंगे लास्ट क्लास में अपनी, बट मेजरली सेल्स होता है. फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज मींस अगर मैंने टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ली, यहाँ पर टैक्सेबल वर्ड मैंने हाईलाइट करा हुआ है. टैक्सेबल का वर्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड है, आइदर 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% प्लस सेस. एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए. अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं है, ऐसे गुड्स की आप सेल कर रहे हैं, ऐसी सर्विसेज की आप सेल कर रहे हैं, तो आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होगा. आपको सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे, सर्विसेज प्रोवाइड करते टाइम पे टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होगा. सिमिलरली अगर आप एग्जेम्प्ट गुड की सेल कर रहे हैं, सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट करना होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. अगर आप नेस्ले का मैगी सेल करते हैं जिसके ऊपर 12% का रेट अप्लाई होता है, 12% का रेट वाला आइटम सेल करते हैं, तो आपको टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होगा. जब भी आप कस्टमर से रिटेलर से मैगी लेने जाएंगे तो आपको टैक्स इनवॉइस देगा आपके साथ. बट ऑन द अदर हैंड साइड, अब हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, पेशेंट का जो बिल आता है, हॉस्पिटल सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो हॉस्पिटल जो बिल इश्यू करता है वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टैक्स इनवॉइस एंड द बिल ऑफ सप्लाई, कि एक टैक्सेबल इवेंट में क्रिएट होता है और दूसरा एग्जेम्प्ट इवेंट में क्रिएट होता है, जहां पर उसका पर टैक्स रेट 0 है या फिर नील रेट है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर इशुएंस. ये मैक्सिमम टाइम लिमिट हम गुड्स और सर्विसेज के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आई एम स्टिल डिस्कसिंग बिकॉज इट इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस पॉइंट. मैक्सिमम टाइम लिमिट कि गुड्स के केस में आपको वो इनवॉइस कब तक क्रिएट करना होगा. हमने पहले भी डिस्कस करा था टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन में, बट दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. गुड्स के केस में आपको इनवॉइस फैक्ट्री से माल बाहर निकलने से पहले पहले क्रिएट करना होगा. मतलब फैक्ट्री मटेरियल रेडी हो गया, आप टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो. यस, यू कैन क्रिएट टैक्स इनवॉइस. फैक्ट्री के एक गेट के पास में मटेरियल खड़ा हुआ है, इवन दो यू कैन क्रिएट द टैक्स इनवॉइस. जैसे ही फैक्ट्री से
मटेरियल बाहर निकलेगा। द लॉ रिस्ट्रिक्ट्स, फैक्ट्री से मटेरियल बाहर नहीं निकल सकता अनटिल एंड अनलेस आपने उसका टैक्स इनवॉइस जनरेट कर दिया है। सो द लॉ हैज गिवन अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन कि टैक्स इनवॉइस फैक्ट्री के मटेरियल बाहर निकलने से पहले ही जनरेट होगा। ये था केस जब मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट केस जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी मूवमेंट नहीं करना होता, जब आप डिलीवर कर देते हैं रिसिपिएंट को गुड्स, इन दैट सिचुएशन उससे पहले आपको टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होगा। ऑन द अदर हैंड साइड, सर्विसेज के केस में, सर्विसेज कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 10 डेज का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10 डेज के कोर्स कंप्लीट होने के 30 डेज आफ्टर, इन बिफोर 30 डेज एंड्स, I can create tax invoice on any day. The maximum time limit for issuance of tax invoice provided to me by the government is 30 days after the completion of service. Hope it is clear. Now these are the two major and the main documents what is prescribed in the GST law. Rest जितने भी हम documents अभी आगे बात करेंगे वो इसके underlying documents हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट एंड मेन डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई है। जब भी कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, वो इससे अंडरलाइन डॉक्यूमेंट, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। बट मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट किसी भी सप्लाई का जो होता है वो हमारा टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई ही होता है। नेक्स्ट आई कम्स द क्रेडिट नोट। we will cover challan also, wait, we will cover that also. क्रेडिट नोट आपने, friends, please listen very carefully. What I am telling you to you is something different from the earlier regime of sales tax and the service tax. GST के अंदर government have given a special या specific power to the supplier of service, and the power is credit note and debit note can be generated only and only by the supplier of goods or the services. मतलब सप्लायर ऑफ सर्विसेज जिसने टैक्स इनवॉइस इशू करा था या जिसने बिल ऑफ सप्लाई इशू करा था, जिसने टैक्स इनवॉइस पहले इशू करा था किसी सप्लाई के रिगार्डिंग में, या किसी ने सर्विस के एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट में बिल ऑफ सप्लाई इशू करा था, he or she can only create a debit note, not the recipient of goods or the recipient of service. उससे पहले टैक्स क्रेडिट नोट होता क्या है? क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप अपनी लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, जीएसटी की लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। लाइबिलिटी कम कैसे होगी? लाइबिलिटी उस सप्लाई की जिस सप्लाई के अगेंस्ट में आप टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। मतलब मैंने एक टैक्स इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाया, या वो गुड्स मैंने जो भेजे थे वो रिटर्न हो गए। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट टाइम में जब रिटर्न फाइल करी थी या टैक्स इनवॉइस की वजह से जो लाइबिलिटी जीएसटी जमा करवाया था, वो मैं गवर्नमेंट से वापस मांगूंगा। वो वापस मांगने के लिए आई एम रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। आई हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट टू द रिसिपिएंट, और वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा कि रीजन ऑफ इशूइंग द क्रेडिट नोट, कि वो किस रीजन से इशू हुआ है, एंड मैंने अपने इतने रुपए से लायबिलिटी टैक्स की कम करना चाहता हूं। अब जैसे ही मैं उसमें ये लिखूंगा कि मैं इतने रुपए से लायबिलिटी कम करना चाहता हूं, तो जब मैं ये क्रेडिट नोट रिसिपिएंट को बना के दूंगा, तो रिसिपिएंट विल डिक्रीज द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय हिम। जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा वो उसको कम कर देगा उतने रुपए से, क्योंकि जब मैं अपनी लायबिलिटी कम कर रहा हूं पे करने की, तो वो अपनी तरफ से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेके बैठा होगा वो उसको कम कर देगा। क्रेडिट नोट यूज होता है लायबिलिटी कम करने के लिए, डेबिट नोट यूज होता है लायबिलिटी बढ़ाने के लिए। बोथ आर अपोजिट टू द नेचर, बट अंडरलाइन डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस ही रहेगा। मुझे कोई टैक्स इनवॉइस की लायबिलिटी कम करनी है, आई कैन इशू क्रेडिट नोट। मुझे किसी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ानी है, आई विल इशू अ डेबिट नोट।
But again I am repeating, credit note or debit note can be generated only by the supplier. ऐसा नहीं हो सकता आपने डेबिट नोट नहीं दिया बट आपने सप्लायर से क्रेडिट नोट ले लिया, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल. जीएसटी में अगर लायबिलिटी आपको अपनी कम करनी है, then the supplier have to issue the credit note or debit note. There is no other way that recipient can issue the document directly और जिससे आपकी liability कम या ज्यादा हो जाए. This is not possible. So the government has given the reasons for issuing the credit note. आप क्रेडिट नोट सिर्फ इन्हीं 4 सिचुएशन में रेज कर सकते हैं जीएसटी में. मतलब आप इन 4 रीजन के सिवाय अपनी जीएसटी लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते. दिस कुड बी सेड, आप इन 4 रीजन के सिवाय अपनी लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हैं. वो 4 रीजन क्या क्या हैं? आपने जो, प्लीज रीड विथ मी, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी इज एक्सेस चार्ज ऑन द मेन इनवॉइस. आपने जो टैक्स इनवॉइस बनाया था उसके ऊपर आपने टैक्सेबल वैल्यू या जीएसटी ज्यादा चार्ज कर लिया था, गलत चार्ज कर लिया था, एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था एक उससे. तो उसको कम करने के लिए आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. गुड्स नॉट सर्विसेज, गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड. आपने गुड्स भेजे थे लेकिन पार्टी ने उसको वापस कर दिया, देन यू कैन क्रिएट अ क्रेडिट नोट. गुड्स और सर्विसेज, बोथ गुड्स और सर्विसेज, जो आपने गुड्स और सर्विसेज दिए थे, आपने बिलिंग ज्यादा की कर दी बट आपने उतने गुड्स भेजे ही नहीं है और या फिर वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की है, तो आप उसमें क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड साइड, डेबिट नोट, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी चार्ज इन लेस चार्ज ऑन द इनवॉइस. आपने जब टैक्स इनवॉइस क्रिएट करा था उसमें टैक्सेबल वैल्यू या जीएसटी जो था वो आपने कम चार्ज कर लिया था. आपको उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए डेबिट नोट सप्लायर को रेज करना होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ सप्लायर ऑफ सर्विस क्रिएट कर सकता है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं क्रिएट कर सकता है. अंडर अर्लियर लॉ recipient was also used to they have an option of creating notes, but in GST they are not permitted to do. अब गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन दे दी कि भैया आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी है तो वी आर गिविंग अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है आप अपनी लायबिलिटी कभी भी आके 2 साल बाद आके कम करने लग जाओ. 2 साल का कोई टाइम नहीं है. हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, आप इतने ही टाइम में अपनी लायबिलिटी कम कर सकते हो. बट वेरी क्लेवरली गवर्नमेंट ने लायबिलिटी कम करने का तो टाइम दे दिया बट लायबिलिटी बढ़ाने का कोई टाइम नहीं दिया. मतलब आपको अगर लायबिलिटी बढ़ानी है तो आप कभी भी आके बढ़ा लो, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन विद यू. आप लायबिलिटी कभी भी बढ़ा सकते हो बट लायबिलिटी कम करने का हमने आपको एक फिक्स टाइम दिया है. और व्हाट इज दैट टाइम? टाइम सेज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ये कंडीशन हमने एक जगह और भी पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर गाइस. ये कंडीशन हमने पढ़ी थी आईटीसी अवेलमेंट की, कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इनवॉइस का कब तक ले सकते हैं. सेम डेट यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब्ड है, 30 सितंबर का. आप किसी मेन इनवॉइस की क्रेडिट नोट, मेरा इनवॉइस मेन इनवॉइस बोल दो, टैक्स इनवॉइस, मेरा टैक्स इनवॉइस अगर मैंने 31 मार्च 2019 को बनाया है तो उसके अगेंस्ट में अगर मुझे कोई क्रेडिट नोट बनाना है तो वो क्रेडिट नोट मैं लास्ट 30 सितंबर 2019 तक बना सकता हूँ. उसके बाद आई कांट raise a credit note beyond 30th September 2019. अगर मेरे को डेबिट नोट रेज कर रहा है उसके अगेंस्ट में, then I even that after I can raise after 30th September. Second thing, अगर मुझे ये मेन इनवॉइस मेरा 1 अप्रैल 2019 का होता तो मैं ये क्रेडिट नोट दिसंबर 2020 तक रेज कर सकता हूँ, 30 सितंबर 2020 तक. Hope it is clear to you all. I have one query of mine that I will revert. Surely I will revert on that. Others, hope you have all clear on this. मुझे क्रेडिट नोट बनाने का उन्होंने टाइम दे दिया कि आप इसी टाइम तक क्रेडिट नोट बना सकते हो. मान्य आपका क्वेरी है कि 20 अक्टूबर इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, सितंबर मंथ नहीं है वहां पर. एक्चुअली द लॉ, यू आर वेरी राइटली सेइंग कि 20 अक्टूबर का डेडलाइन है, बट इट इज वेरी लिटिगेटिव स्टैंड अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंशन कभी भी वो नहीं था. अगर आप 20 अक्टूबर तक चेंज करेंगे तो आप नवंबर रिटर्न में 20 अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न नवंबर में जाएंगी उसमें रिपोर्ट करेंगे. मतलब यू आर मेकिंग चेंजेस इन अक्टूबर मंथ. सो litigations could arise on that. Be on a safer side. I will always advise to make the changes
on or before 30th October. Yes, you are correct, but it is again litigative. केसेस फाइल होंगे इसके अगेंस्ट में, लिटिगेशंस होंगे इसके अगेंस्ट में. On a safer side, I am telling the date of 30th September. If I strictly read the law, GSTR 3B is not a return, so there is no deadline. Agar if I take a very strict interpretation of the law, so I'm not going. I'm taking a very conservative opinion. So rest, guys, you please keep it to yourself. 30th September is the date. I am keeping 30th September. आप 30th September तक उसका क्रेडिट नोट रेज कर देंगे. क्लियर? एवरीवन क्लियर? क्लियर? I am moving ahead. Next is the receipt voucher. Receipt voucher says अगर आपको सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में नहीं, सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में कोई एडवांस पेमेंट आता है तो आपको रिसिप्ट वाउचर रेज करना होगा. व्हाई द गवर्नमेंट वांट रिसिप्ट वाउचर? गवर्नमेंट रिसिप्ट वाउचर इसलिए चाहती है कि इफ यू रिमेंबर टाइम ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट एडवांस रिसीव करते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है सर्विसेज के केस में. तो जैसे ही आप रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करेंगे तो इट विल प्रूव कि आपके पर उस महीने में जीएसटी की लायबिलिटी आ गई है. और ये रेस कब करना होता है? जैसे ही आपको जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन आपको एक रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करके देना होगा सामने वाले रिसिपेंट. रिफंड वाउचर, रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट. अगर कोई पैसा एडवांस में रिसीव हुआ था जिसके अगेंस्ट में आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है और टैक्स इनवॉइस भी क्रिएट नहीं हुआ है उसका, तो आप रिफंड वाउचर बनाएंगे और जिस दिन रिफंड करेंगे उस दिन ये वाउचर क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट टू वाज बिट इंपॉर्टेंट एंड आल्सो यूज्ड टू कम इन आवर डेली लाइफ, पेमेंट वाउचर. हमने कुछ रिवर्स चार्ज की सर्विसेज की बात की थी कि रिवर्स चार्ज में कुछ सर्विसेज हम प्रोक्योर करते हैं तो जिसके ऊपर टैक्स हमें जमा कराना पड़ता है. वो सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जनरली जो हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलती है, जिससे हम सर्विसेज लेते हैं और जनरली इनवॉइस नहीं देता है हमें, और वो देता है तो दैट इज नॉट जीएसटी इनवॉइस, मतलब जीएसटी कंप्लायंट नहीं होता है. तो गवर्नमेंट ने एक पेमेंट वाउचर बनाया. पेमेंट वाउचर सेज कि ऐसी कोई सर्विसेज लेंगे जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स जमा कराना है. फर्स्ट कंडीशन, रिवर्स चार्ज में टैक्स आपको जमा कराना है. सेकंड कंडीशन, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, वो प्रॉपर इनवॉइस देगा ही देगा, इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज पेनल्टी लग जाएगी. किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे, आरसीएम वाली सर्विसेज लेंगे तो आपको पेमेंट वाउचर क्रिएट करना होगा. आरसीएम वाली सर्विसेज लेंगे देंगे नहीं, इनवर्ड रिसिप्ट है, इनवर्ड रिसिप्ट ऑफ आरसीएम सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन थे तो आपको पेमेंट वाउचर क्रिएट करना होगा. एंड लास्ट इज दी डिलीवरी चालान. अभी हमने जितनी भी आज तक बात करी है वो सभी सेल की बात करी है कि मैंने मटेरियल सेल कर दिया तो मैंने टैक्स इनवॉइस बना दिया, एग्जेम्प्ट मटेरियल सेल करा तो मैंने बिल ऑफ सप्लाई बना दिया. बट जीएसटी के अंदर काफी सारी गुड्स की मूवमेंट ऐसी भी होती है जो हमारे बिजनेसेस में यूज होती हैं बट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ट्रक था, मेरा ट्रक थोड़ा खराब हो गया. ट्रक खराब हो गया तो मैंने सामने रिपेयरिंग वाली शॉप पे भेज दिया. आई वुड से ट्रक नहीं बल्कि ट्रक का एक इंजन का पार्ट खराब हो गया. इंजन का पार्ट खराब हो गया तो मैंने इंजन निकाला और उसको रिपेयरिंग के लिए भेज दिया. रिपेयरिंग के लिए भेज दिया तो रास्ते में ऑफिसर के नास्क कि तो आप सेल कर रहे हैं, आपने टैक्स इनवॉइस क्यों नहीं क्रिएट करा? तो गवर्नमेंट ने कहा जब आप गुड्स की मूवमेंट करा रहे हैं, मैंने बोला गुड्स की मूवमेंट करवा रहे हैं बट दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेल, वो सेल्स नहीं है, तो ऐसे सिनेरियोज में आप एक अलग डॉक्यूमेंट, फ्रेश डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने एडवाइस करा, वो था डिलीवरी चालान. आप डिलीवरी चालान बनाने के बाद ही ऐसे गुड्स को अपनी फैक्ट्री से गेट से बाहर निकालेंगे. अनदर एग्जांपल, अगर आप फ्री ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, आपने फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में गुड्स तो बाहर जाएंगे, मैं इनवॉइस क्रिएट करूंगा नहीं बिकॉज मैं कोई सेल तो कर नहीं रहा हूँ इसकी, मैं तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो गुड्स कैसे बाहर जाएंगे? गुड्स बाहर जाएंगे ही जब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा.
तो डिलीवरी चालान उस सिनेरियो में क्रिएट होगा। गाइस रिमेंबर वन थिंग, मेरी फैक्ट्री से, मेरी शॉप से, मेरे स्टोर से मटेरियल जीएसटी के अंदर बाहर जाएगा ही तभी जब मेरे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बन जाएगा। कुछ ना कुछ का मतलब या तो टैक्स इनवॉइस बन जाएगा, या बिल ऑफ सप्लाई बन जाएगा, या मेरा डिलीवरी चालान बन जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरी फैक्ट्री से, मेरे स्टोर से, मेरी शॉप से मटेरियल बाहर किसी भी सिचुएशन में नहीं जा सकता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। A person registered under GST law is mandatorily required to issue any one of the three documents before sending any goods out of his store, warehouse, or any else premises. The goods can be moved either as a sale or any other transaction. Depending on the transaction, the document will vary, but document has to be issued mandatorily. Hope it is very clear to you all. I am moving ahead. I have here given you the contents. मैंने ऊपर लिस्ट लिखी हुई है, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, डिलीवरी चालान। ये सभी डॉक्यूमेंट कब कब इशू करने आते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ आई एम डिस्कसिंग कि टैक्स इनवॉइस में गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट है कि ऐसा टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट इनवॉइस। The person, I have received one question that who issues a refund voucher? The person who is refunding the amount will be issuing the refund voucher. मेरे पास पैसा पहले एडवांस में आया था तो मैंने रिसिप्ट वाउचर इशू करा था, जब मैं पैसे रिफंड करूंगा तो मैं रिफंड वाउचर क्रिएट करूंगा। The supplier only liable to create the refund voucher. I am moving ahead. So डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या चीजें आएंगी मैंडेटरली मेंशन्ड है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर इनमें से एक भी चीज जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड है और नहीं आती है, then that invoice will not be considered as a valid invoice and government can levy penalty on that. Means अगर ये given details, if the given details spot is not working, please don't focus in this red spot, it's not working, not an issue, you just focus on my arrow. Government has prescribed कि ये डिटेल्स आना कंपलसरी है। नेम, एड्रेस, लिस्ट मैंडेटरी है, जहां जहां पर टिक लगा हुआ है वो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। टैक्स इनवॉइस है, जहां पर टैक्स टिक लगा है वो डिटेल उसके ऊपर आना जरूरी है। आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द पर्टिकुलर्स, राइट एंड रॉन्ग यू विल लुक एट योरसेल्फ। नेम, एड्रेस, जीएसटी ऑफ सप्लायर, द पर्सन हु इज सप्लाइंग, उसका नाम, उसका एड्रेस एंड उसका जीएसटी नंबर कंपलसरी आना जरूरी है। सीरियल नंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट जीएसटी में क्रिएट होगा वो एक सीरियल नंबर से चलेगा, 1 2 3 4, इट कैन बी एनी सीरीज बट शुड बी इन अ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। ऐसा नहीं है एक सीरीज 1 से शुरू हो गई और 1 के बाद आप सीधा 5 रेज कर रहे हैं, 5 के बाद 7 रेज कर रहे हैं। सीरीज कैन बी, शुड बी इन अ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट सीरीज कैन नॉट एक्सीड 16 कैरेक्टर्स। इनवॉइस नंबर हैज टू बी लिमिटेड अप टू 16 characters. Third point, series need to be changed year by year. It cannot be changed month by month. 1 2 3 4 कोई काफी क्लाइंट्स क्या करते हैं, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, मई आता है, मई 1 2, मई 3, मई 4। दिस इज नो रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। अप्रैल में अगर आपने 1 शुरू कर दिया है, देन इट विल गो अप टू 31 मार्च 2020। On 1st April, it is mandatory. It is not optional. It is mandatory that you have to issue a series, new series. Next is date of its issue.
आपने किस दिन वो इनवॉइस क्रिएट करा है या डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, उसकी डेट, नेम, एड्रेस, जीएसटी ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको आप सब माल भेज रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं, सर्विस भेज रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, शिपिंग नहीं, बिलिंग कर रहे हैं। शिपिंग कहीं और भी हो सकती है। आप जिसको भेज रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, उसका नेम, उसका एड्रेस एंड द जीएसटी। एचएसएन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस गुड्स का या सर्विसेज का एचएसएन क्या है। आज के दिन 99.5 करोड़ से ऊपर जो टर्नओवर है उनके 4 डिजिट का मैंडेटरी है। तो वी ऑलवेज सजेस्ट एवरी क्लाइंट कि 4 डिजिट एचएसएन वो एटलीस्ट मेंशन करे अपने इनवॉइस पे या डॉक्यूमेंट पे। डिस्क्रिप्शन मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल 9963, इट्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, so HSN will be 9963, description will be goods transport agency, or the description can be varied. The client can write description in its own language also. Quantity only applicable in case of goods because services में कोई quantity होती नहीं। कितनी quantity आपने भेज रहे हैं, total value, total value means price, taxable value plus GST. It is including GST, not excluding GST. I'm moving on the second page. Taxable value 100 rupees. Rate of tax, for example 5%, you have to mention either 5%. Amount of tax 5 rupees, 5 rupees 5%, 100 rupees, total value will be 105 rupees. Place of supply, place of supply determined by you. Address of delivery, deliver kahan par hona hai, this is shipping address. Tax payable on RCM, you have to write yes or no. The proper line says whether tax is payable on RCM. जब टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो टैक्स लिखा हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड्स वाला ट्रांसपोर्ट है, वो बिल क्रिएट करता है, बिल के ऊपर टैक्स का फिगर लिखना कंपल्सरी है बिकॉज रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन टिक्ड एज, बट ही विल राइट ऑन इट्स इनवॉइस दैट टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उससे होगा क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला जब बिल बनाएगा तो 100 रुपीज, 5 रुपीज जीएसटी, 105 इज द टोटल रुपीज, और नीचे लिखा होगा टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जब रिसिपिएंट या सर्विस रिसीवर के पास जो वो बिल आएगा तो रिसीवर जो उस बिल को पढ़ेगा तो देखते ही कहेगा ये आरसीएम का इनवॉइस है, वो ट्रांसपोर्टर को ओनली 100 रुपीज पे करेगा और 5 रुपीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा कराएगा, सिंस टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज वहां पर यस लिखा होगा। सिग्नेचर यस, serial number of original invoice and date of original invoice. This is applicable only in case of credit note or debit note, because credit note and debit note create जब होता है जब इसका कोई मेन इनवॉइस ऑलरेडी होता है। तो मेन इनवॉइस मींस प्राइमरी टैक्स इनवॉइस जब क्रिएट होता है तो उसका नंबर, और प्राइमरी जो इनवॉइस क्रिएट होता है उसका डेट, ये यहाँ पर बेसिकली डिटेल्स में आता है। So by this we are completing the topic of document required under GST. Hope it is clear to every one of you. If you have any queries till here, documents किस पे क्या confusion है कुछ, then please ask your questions. Otherwise, I am going ahead in another 1 minute. That's fine. Let's move ahead. Next topic, what we are starting, is very, very important. I would say very, very important. This is the main जो हमने सीखा है, सब कुछ होगा कैसे, वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है। दिस इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। बुक्स में एंट्रीज फ्लो कैसे करती हैं। आई विल गिव यू द सिनेरियोज and we will frame the entries. We will learn how it will look in trial. We will learn how it will look in profit and loss account. We will learn how it will look in balance sheet. And the figure derived today, basis those figures, we will be learning filing of GST returns tomorrow. Basis those figures only. We will be using the figures given in
finalized in today's working. For tomorrow, I can't continue with the written section today itself because time devours me. So we will freeze those figures. We will learn written filing process tomorrow. We will start with written filing process tomorrow with the figures decided today. I will give you various situations, around 5 to 6 situations, which will inter alia includes the whole role of GST, almost every captured in GST. These 5 to 6 transactions capture the GST implication. 2 or 3 more transactions are left that we will discuss at the time of filing of the return. I will start with this topic with ledger creation. GST जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो बिजनेसमैन ने अपनी बुक्स में कौन कौन से जर्नल लेजर्स नहीं ओपन करें, उसको कौन कौन से जीएल्स फर्स्ट डे व्हेन ही गॉट हिज बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो उसको कौन से लेजर्स ओपन करने होंगे अपनी बुक्स के अंदर। लेजर्स ओपन करने के बाद सेल की एंट्रीज कैसे होंगी, परचेज की एंट्री कैसे होंगी। अब ऐसा तो है नहीं हर लास्ट मंथ में इनवॉइस पे बैठ के वो टोटल लगाता रहेगा कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, कितना सेल आ गया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। So how to drill that out from the journal entries, from the summarized trial balance, from the summarized profit and loss account or the balance sheet. This we will learn in this part. This is very important. Guys, please listen me very, very carefully. In the first slide, I have tried to capture कि आपको कौन कौन से जर्नल लेजर्स अपनी बुक में खोलने होते हैं on the first day when you get your business registered under GST. Depending on the complexity and the nature of business, ये जर्नल लेजर्स इंक्रीज होते जाएंगे. I will definitely give you example in this slide itself कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और कैसे कैसे जर्नल लेजर्स बढ़ते जाते हैं. बिकॉज लॉ हैज प्रोवाइडेड इट्स रिक्वायरमेंट. जब हम रिटर्न फाइलिंग करने जाते हैं तो वहां पर अलग अलग सिनेरियोज और अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांगता है, और उस इन्फॉर्मेशन को इजीली निकालने के लिए वी नीड टू एक्सपेंड आवर जर्नल लेजर्स. वी हैव टू फोकस, वी हैव टू डू द एंट्रीज वेरी वेरी क्लियरली. लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद द सेल्स अकाउंट. एवरीबॉडी नोज मैं कोई भी सेल्स करूंगा तो वो सेल्स अकाउंट में आएंगी. तो सबसे पहला जीएल आई बिलीव ये क्रिएटेड होता है या मुझे क्रिएट करना होगा, वो होगा सेल्स का जीएल. ये आएगा कहां पर, मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है. बैलेंस शीट के अंदर या फाइनेंशियल्स के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है. as I said earlier, depending on the complexity of business, हमें इस सेल्स अकाउंट को एक सिंगल सेल्स अकाउंट खोल के रहेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी. वी मे हैव टू प्रोवाइड इसका क्लासिफिकेशन. मींस व्हेन टुमारो जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आप देखेंगे द गवर्नमेंट विल आस्क आपने इंटरेस्ट रेट सेल कितना करा है, आपने इंटरेस्ट रेट सेल कितना करा है, आपने 5% के आइटम का सेल कितना करा है, आपने इस वाले एचएसएन का सेल कितना करा है, दूसरे वाले एचएसएन का सेल कितना करा है. मतलब 100 रुपए की फिगर सेल्स को वो 4 अलग अलग वे से पूछेगा कि इसमें 5% वाला कितना है, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है. सॉरी. तो उसकी इजी टू टेक अप दोज वैल्यूज. इट इज ऑलवेज बीन सजेस्टेबल कि आप अपने जीएल्स को एक्सपेंड एक सिंगल लेजर में डालने की बजाय अलग अलग जीएल्स खोल लीजिए. व्हाट वी यूजुअली डू, हम सेल्स को बाइफरकेट कर देते हैं दो पार्ट में, सेंट्रल सेल्स, लोकल सेल्स, एंड और ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ आउटपुट टैक्स. फॉर एग्जांपल एक आइटम मेरे पास 5% वाला है, एक आइटम 12% वाला है, तो मैं 5% का लोकल सेल्स अलग बना देता हूँ, 5% का सेंट्रल सेल्स अलग बना देता हूँ, 12% का लोकल सेल्स अलग बना देता हूँ, 12% का सेंट्रल सेल्स अलग बना देता हूँ. तो एक सेल्स का जीएल लेजर से हमने शुरू करा था. नाउ वी आर एट द फोर्थ जर्नल लेजर्स. अगर मेरे 2 आइटम होते हैं तो मेरे 4 जीएल खुल जाते हैं. पहले मैंने स्टार्ट एक से करा था कि मेरे को एक जनरल लेजर बनाना होगा, बट लुकिंग ओवर द कॉम्प्लेक्सिटी
मुझे 4 जीएल्स बनाने थे. What is the nature of central sales? Central sales means interstate sales. I have given the terminology what is used in practical life. Central sales is the interstate sales. Local sales means intrastate sales. So can be further subdivided basis the central or the local sales or the rate of output tax. तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने एक बढ़ाई, अभी मैंने एक सेल्स के लेजर से शुरू करता, बट जैसे ही मैंने 2 प्रोडक्ट डाल दिए तो मेरे लेजर 4 हो गए. हाउ? सेंट्रल सेल्स 5%, सेंट्रल सेल्स 12%, local sales 5%, local sales 12%. Easy to identify. When you go in your profit and loss account, you will easily determine कि मेरी 5% वाली सेल कितनी हुई है, 12% वाली सेल कितनी हुई है. अगर ये सारी फिगर एक ही सेल्स के जीएल में होती तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि सेल्स कहां पर कितनी हुई. देन फिर आपको एक एक डॉक्यूमेंट खोल के चेक करना पड़ेगा. गोइंग अहेड, परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट मींस आई हैव रिटन हियर परचेज अकाउंट, but it deemed to include every expense. मैं यहाँ पर सभी expenses की बात कर रहा हूँ, चाहे वो direct expense हो, चाहे वो indirect expense हो. ये सभी expense मेरे profit and loss account में credit side में आते हैं. Expenses could also be classified as central sales or local sales. Local, sorry, I just removed a word. I need to correct. Local purchase or central purchase, or the rate of input tax. Central or local purchase or rate of input tax. 90% of the companies sale purchase को अपने bifurcate करती नहीं है. It depends on the software they are using. It depends on the facilities they are using. गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लॉ आया था तो उसके रिटर्न के फॉर्मेट इतने कॉम्प्लेक्स बनाए थे कि उस टाइम पे हमें डिवाइड करने की जरूरत थी, बट फर्दर दे हैव रिलैक्स द रिटर्न फॉर्मेट्स, तो उसके बाद हमें ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. तो 90% ऑफ द कंपनीज परचेज अकाउंट को एक सिंगल परचेज अकाउंट में लेती है, उसको फर्दर सेंट्रल या लोकल में बाइफरकेट नहीं करती है एज ऑन डेट. आगे बढ़ता हूं मैं. सीजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल, आईजीएसटी पेबल डिनोट्स liability of GST on my sales. It is part of current liabilities. It is shown under balance sheet. Can be further divided basis rate of tax. इसको भी हम आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे कि कितने रुपए का टैक्स है और कितना मेरा सीजीएसटी पेबल है. फॉर एग्जांपल, आपने 5% सेंट्रल सेल्स आपकी पीएनएल से निकल के आ गई 100 रुपीज की, लेकिन आपको कंपेयर करना है कि टैक्स सही लगा या नहीं लगा. तो 100 into 5 5 रुपए का, अब पता चल गया 5 रुपए का टैक्स है. देन यू कैन कंपेयर दिस 5 रुपीज फिगर डिटरमाइंड बाय योर कैलकुलेशन विद द बैलेंस कमिंग इन योर बैलेंस शीट. सो बेनिफिट ऑफ bifurcating the payable ledger is you can compare yourself at the time of filing return. However, this could not be possible in case of receivables because multiple, क्योंकि इनपुट सर्विसेज कैपिटल मैं जो रिसीव करूंगा वो अलग अलग रेट के होंगे. सेल्स तो जनरली मैं 1 और 2 और 3 आइटम्स ही करूंगा, जो मेरे को पता है वो 2-3 आइटम 1-2 रेट में ज्यादा नहीं होंगे. बट परचेज जो होगी वो 3% के आइटम की भी होगी, 5 की भी होगी, 12 की होगी. तो इतने सारे जीएल्स बनाना इज इम्पॉसिबल. एंड फर्दर रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर्मेट्स. So I don't need to create multiple GLs. I will create a single GL of CGST receivable, SGST receivable, IGST receivable. Since it is receivable, since it is an asset for the company, it will be classified under current assets of the balance sheet, form part of balance sheet. And if it client requires, you can divide basis the rate of the tax. Hope you have got to know the nature. My intention of presenting this slide is give you the bifurcation कि sales revenue में आता है, purchase expenses में आता है, payables के GL मेरे liabilities में आते हैं और receivable के GLs मेरे assets में आते हैं. Above two GLs form part of my profit and loss account. Balance 2 form part of my balance sheet. At the time of filing return, I need to see both my profit and loss account and balance sheet. Depending on the complexity of business, you can bifurcate the sales into local sales or the central sales.
or the rate of output tax or both, and even purchase, but it is never been suggestible to bifurcate the purchase. CGST, SGST, IGST people, you can bifurcate, I always suggest, but resale part, I never suggest. By this, I am trying to provide you a message. This is the ledgers what I am required to open on the first day when I got the GST registration done. Post that, I will learn how to post the sales entries. So I will start with the journal entries. अगर मैं सेल्स करता हूं तो मुझे जर्नल कैसे करना होगा, जीएसटी का इम्प्लीकेशन कैसे कैसे लेना होगा. So we will see the journal entries. So here I have started with the first example. I will give you 5 or 6 examples which will help you. The first question says, please listen me very carefully. I request each one of you, please listen me very carefully. This is practical what we are doing. This is the day one task when you are going back to your offices. Mr. Ram, located in Delhi. Mr. Ram, listen me carefully. Mr. Ram, दिल्ली में रहते हैं. उन्होंने गुड्स सोल्ड करे हैं 50,000 रुपए प्लस जीएसटी. जीएसटी इज एडिशनल टू दैट. 50,000 इज द टैक्सेबल वैल्यू. मिस्टर राम दिल्ली में रहते हैं. उन्होंने 50,000 रुपए का मटेरियल सेल करा है मिस्टर वाई को, हु रिसाइड्स इन हरियाणा, on the first day of the financial year, 1st April 2020. The material is, the HSN of the material is 4823 and it is taxable at the rate of 18%. I have given the rate of tax for your convenience. Otherwise, the businessman has to look the notification and has to find first the HSN and then the rate of tax applicable in that HSN. In this scenario, अगर ये केस होता है हमारे पास, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? दिस इज आवर मूड क्वेश्चन. आई हैव द आंसर विद मी. एज यू सी, दिल्ली में है 50,000 रुपए की गुड्स सेल करें मिस्टर वाई को. मिस्टर वाई से हम कितने पैसे कलेक्ट करेंगे? 50,000 प्लस जीएसटी. 50,000 plus GST. Since Mr. Y is located in Haryana, I am located in Delhi, it will be classified as interstate sales, because place of supply, since I am believing that goods are going back to Haryana, it involves a movement of goods. जब goods का movement involve होता है, तो place of supply is a place where it terminates, जहाँ delivery complete होती है. डिलीवरी कहाँ कंप्लीट हो रही है? हरियाणा में. प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन हरियाणा. प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर आर डिफरेंट, टू डिफरेंट स्टेट्स, मींस इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई मींस आईजीएसटी लगेगा. आईजीएसटी लगेगा कितने परसेंट से? 18% से. 50,000 18%, 9,000 रुपीज. सो मिस्टर वाई विल पे मी 50,000 प्लस 9,000, 59,000 रुपीज. वाई क्या है मेरी बुक्स में? डेटर है. मैं मिस्टर वाई से 59,000 रुपीज कलेक्ट करूंगा, बट मेरी सेल्स तो 50,000 रुपए की है, तो माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इंपैक्टेड बाय 50,000 रुपीज एंड रेस्ट 9,000 रुपीज इज द लायबिलिटी व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट. तो 9,000 रुपीज विल बी द जीएसटी आईजीएसटी पेबल एंड द एंट्री विल बी वाई अकाउंट डेबिट 5,90,000 rupees to central sales, because it is a sales interstate sales, 5 lakh rupees. IGST payable 90,000 rupees. I will go very slow in this session because this is very important. Anyone have query in any of the entries, please stop me there itself. Please don't mingle up in your mind, otherwise there is no benefit of session. वाई से मैं 5,90,000 लूंगा, सेंट्रल सेल्स में 5 लाख की करूंगा और आईजीएसटी में 90,000 का एक्स्ट्रा लूंगा. दिस वाई विल बी पार्क्ड इन माय बैलेंस शीट एज अ डेटर्स. दिस सेंट्रल सेल्स विल बी पार्क्ड इन माय, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स. This Y will be there in the debtors. Central sales will be part of my profit and loss account, denoting my sales. And 90,000 is the liability
representing in the balance sheet and the current liabilities. Hope it is clear to you all. I am moving to the next entry. I will give you 5 to 6 example. Hope everything will be clear by those examples. Next transaction. Mr. Ram, same person, located in Delhi. दिल्ली में 10 लाख रुपए के गुड्स सेल करते हैं एडिशनल जीएसटी के साथ मिस्टर जेड को, लोकेटेड इन दिल्ली. दिल्ली भी, वो भी दिल्ली में लोकेटेड है. ऑन 15 अप्रैल को गुड्स आर सेम 4823, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%. सेल करी है. फर्स्ट आई विल डिसाइड इट इज अ लोकल सेल्स. बिकॉज व्हाई इट इज अ लोकल सेल्स? सिंस आई बिलीव गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है. मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? वेयर द टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? दिल्ली में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली. when the location of supplier and the place of supply same state, is it an intra-state supply? Intra-state supply means CGST and SGST. CGST and SGST means 9% of 18, 50% of 18%, and the 50% of the 18% is CGST and SGST. What Mr. Z is liable to pay me? Mr. Z 10 lakh plus 18% of 10 lakh means 1,80,000 rupees. Mr. Z is liable to pay me 11,80,000. My sales is of 10 lakh rupees. My CGST payable of 90,000 rupees and SGST payable of 90,000 rupees. Entries in front of you. Anyone have any queries? Please let me know. Z account parked in debtors. Local sales part of my profit and loss account. CGST payable, SGST level, current liabilities. Liabilities means उधार. ये मेरे को सरकार को वापस देना है. I am moving ahead. Hope it is clear to you. Transaction 3. Please listen me very carefully. I am changing the transaction very fast. Mr. Ram, located in Delhi. Again, same person. Sold goods to Mr. Sold goods worth rupees 2 lakh to Mr. China, located outside India. Goods India से बाहर जा रहे हैं. Goods India से बाहर जा रहे हैं. Means, is it a central sales or local sales? No, it is nothing else. It is something different. It is an exports. And what we have studied yesterday, exports के ऊपर GST नहीं लगता है. तो यहाँ पर तो GST लगेगा ही नहीं. तो फिर गुड्स के ऊपर सरकार ने रेट क्यों दिया हुआ है? सरकार ने तो सभी गुड्स पे रेट दिया हुआ है. इट डजंट मीन कि वो एक्सपोर्ट पे रेट लगाना शुरू कर देंगे. तो मिस्टर चाइना इज लायबल टू पे मी ओनली 2 lakh rupees and is not liable to pay me 18% additional GST on that because the goods are moving outside India. तो मैं एंट्री क्या करूंगा? Mr. China will pay me 2 lakh rupees to export sales. मैंने सेल्स का एक और क्लासिफिकेशन कर दिया. मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन बताए थे, सेंट्रल सेल्स एंड द लोकल सेल्स, एंड नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन कम्स, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 2 lakh rupees. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. बिकॉज यहाँ पर जीएसटी का रेट देने से कुछ नहीं होता. जब उस चीज पर टैक्स ही नहीं लगता तो जीएसटी का रेट देने से कुछ नहीं होगा. आई एम मूविंग अहेड विद माय फोर्थ ट्रांजैक्शन. Please listen me very carefully. Again, I am repeating. Mr. Ram, same person, located in Delhi, provides sponsorship services. Hope you remember, sponsorship वो वाली सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर रिसिपिएंट टैक्स पे करता है. और ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं. मैं सर्विसेज ले नहीं रहा हूं, मैं खुद दे रहा हूं ऐसी सर्विसेज. मिस्टर राम एक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स रिसिपिएंट को पे करना है. कितने रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की है? 2.5 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की है मिस्टर करण को. करण कहाँ पर रहते हैं? करण उत्तर प्रदेश में रहते हैं. 20 तारीख को मैंने 2.5 लाख रुपए की सर्विसेज दी है जिसके ऊपर टैक्स करण को जमा करवाना है. HSN of the services 9965, taxable at the rate of 18%. टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% का मतलब क्या है? किसके ऊपर 18% का टैक्स करण मुझे देगा? नो. टैक्स का रेट तो गवर्नमेंट बताएगी ही बताएगी, लेकिन वो आपके लिए नहीं बता रही, वो करण के लिए बता रही है. करण आपको 2.5 लाख रुपए का टैक्स इसके ऊपर जमा कराना है. तो इस केस में करण मुझे कितने रुपए देगा?
मुझे 2.5 लाख रुपए देगा। बट रिमेंबर गाइस हियर वन पॉइंट, मेरा जो इनवॉइस होगा, इनवॉइस के ऊपर 2.5 लाख प्लस आईजीएसटी ऑफ 18% लिखना कंपलसरी है, लॉ मैंडेट्स दैट। और साथ में एक लाइन भी लिखना जरूरी है, वेदर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यस, वहां पर यस लिखना होगा आपको, अदरवाइज इट इज अ नॉन कंप्लायंस। सिंस आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स करंट को पे करना है, तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना होगा, बिकॉज इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, इट इज नो मोर अ टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स करंट जमा कराएगा। तो यहाँ पर आप 2.5 लाख रुपए के ऊपर प्लस जीएसटी लिख के इनवॉइस पे दिखाएंगे। जीएसटी विल बी ऑफ देयर ऑफ 45,000 रुपीज इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, एंड बट उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यस, जिससे कि करण आपको समझ जाएगा इनवॉइस देख के कि इसके ऊपर जीएसटी मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराना है, ना कि मिस्टर राम को देना। तो एंट्री विल बी Karan will pay me only 2,50,000 rupees. Service income will be 2,50,000 rupees. If you have noted carefully, I have made one more ledger. Depending on the complexity of business, what I said, you have to judge it according to the complexity. No one can freeze it. I just for more clarity, I have bifurcated my revenue part into 4 types: local sales, central sales, export sales, service income. It could be further bifurcated by a number of items, depending on the complexity. These 4 transactions I have discussed on the output part, generally जो होती है हमारे. Now 5th transaction and 6th transaction I am talking about the input part. वो 2 ट्रांजेक्शन से हम ऑलमोस्ट हमारा सारा इनपुट भी कवर कर. 5th ट्रांजेक्शन, मिस्टर नाम, सेम पर्सन, दिल्ली में रहते हैं, रिसीव करे हैं गुड्स, रिसीव करे हैं, बर्थ ₹1 लाख, मिस्टर कार्तिक से, कार्तिक भी दिल्ली में रहते हैं, 16 अप्रैल 2020 को, HSN का 4823, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%. अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना मिस्टर राम का काम है या मिस्टर कार्तिक का काम है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कब होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा इनवॉइस बनने से पहले. इनवॉइस कौन बनाएगा? मिस्टर कार्तिक विल बी क्रिएटिंग इनवॉइस. मिस्टर कार्तिक जब इनवॉइस बनाएंगे तो उस पर देखेंगे मुझे मटेरियल भेजना कहाँ है. वो कहेंगे मेरे को मटेरियल दिल्ली भेजना है, और मेरी सप्लायर की लोकेशन कहाँ है? कार्तिक विल आल्सो बी सिटिंग इन दिल्ली. Since the place of supply and the location of supplier both are in same state, तो कार्तिक जो इनवॉइस बनाएंगे उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल दिखाएंगे. सीजीएसटी रेट 9%, एसजीएसटी रेट 9%, और 1 लाख के ऊपर 9,000 रुपीज का लाइबिलिटी सीजीएसटी का, 9,000 रुपीज का लाइबिलिटी एसजीएसटी का. ऑन द सेम साइड वो 9,000 रुपए की सीजीएसटी की लाइबिलिटी और 9,000 रुपए का एसजीएसटी का लाइबिलिटी will convert into the CGST receivable and SGST receivable of Mr. राम. तो एंट्री क्या होगी? राम ने परचेज करा है 1 लाख रुपए का मटेरियल. परचेज मींस खर्चा है, डेबिट होगा. सीजीएसटी रिसीवेबल, एसजीएसटी रिसीवेबल, 9,000 रुपए 9,000 रुपए डेबिट होंगे. डेबिट क्यों होगा? मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन मुझे कार्तिक को पूरे पैसे देने हैं, पूरे 1,18,000 रुपए देने हैं. कार्तिक तो मुझसे पूरे पैसे मांगेगा ना, क्योंकि दिस सर्विस इज ऑन, दिस परचेज इज नॉट आइटम व्हिच इज कवर्ड अंडर आरसीएम, दिस इज अ फॉरवर्ड चार्ज आइटम. फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पैसा मुझे सप्लायर को पूरा पैसा देना होता है. तो मैंने 1 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए का क्रेडिट लेने के बाद 1,18,000 रुपए मैंने कार्तिक को अपना क्रेडिटर क्रिएट कर दिया. तो मुझे 1,18,000 रुपए कार्तिक को देने हैं. होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल टिल हियर. एक लास्ट एंट्री और बताऊंगा which is again a very important entry for you all. वो एक कंसेप्ट है प्रॉपर एक एंट्री में, जो अभी तक माइट भी हमने डिस्कस ना करा और many of you don't have a clarity on that. यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? Can I get your revert on the Zoom chat box? I'm moving ahead. Please listen me very carefully. Mr. Ram
located in Delhi received GTA services. GTA सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, बिकॉज ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है. द मर्सीज, यहाँ मैंने रिसीव करी है वो सर्विसेज. नो मोर आई एम अ प्रोवाइडर, आई एम अ रिसिपिएंट. आई हैव टू डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट. आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द शाम. मैंने 50,000 रुपए की शाम से, जो कि एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रांसपोर्टर है, मिस्टर शाम ने मुझे 50,000 रुपए की सर्विसेज दी हैं. मिस्टर शाम उत्तर प्रदेश में रहते हैं. उत्तर प्रदेश में रहने वाले शाम ने मुझे दिल्ली में सर्विसेज दी हैं. 20 अप्रैल को सर्विसेज दी हैं और रेट ऑफ टैक्स इसके पर 5% का है. अब 50,000 रुपीज की शाम ने मुझे सर्विसेज दी हैं. 50,000 के ऊपर 5% अगर मैं लगाता हूं तो इट कम्स टू बी 2,500 रुपीज. 2,500 रुपीज का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा कराना है. अदर थिंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि मैं इसके ऊपर सीजीएसटी जमा कराऊं, एसजीएसटी जमा कराऊं या आईजीएसटी जमा कराऊं. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे लिए. मुझे कैसे मालूम मुझे कौन सा टैक्स जमा कराना है? इसके लिए जानने के लिए कि आपको सीजीएसटी जमा कराना है, एसजीएसटी जमा कराना है, आईजीएसटी जमा कराना है, सिंपल सा आंसर ये है, आप अपने आप को सप्लायर के शूज में आ जाइए. अगर आप सप्लायर होते तो आप कौन सा टैक्स लगाते इसके ऊपर? अगर मैं सप्लायर होता तो मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, अंडरस्टैंडिंग मिस्टर राम विल पे मी एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली. दिल्ली में प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मैं यूपी में बैठा हूं, डिफरेंट स्टेट्स हैं. आई विल लिवाई, इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, आई विल लिवाई आईजीएसटी. अगर मिस्टर श्याम आईजीएसटी लगाते तो आपको भी सरकार को आईजीएसटी ही पे करना है. दैट्स क्लियर. आपको कौन सा टैक्स पे करना है वो डिसाइड करने के लिए आपको अपने अपने शूज एज अ सप्लायर डिसाइड बैठना होगा. एज अ सप्लायर आप बैठेंगे तो आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा टैक्स जमा कराना है. फर्स्ट क्वेरी, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेरी, जो टैक्स क्या मैं जमा कराऊंगा, क्या ये टैक्स कुछ अलग टैक्स है जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कराना हो? अगर मिस्टर शाम जमा कराते तो, अगर मेरे को शाम को भी पे करना था, मेरे लिए रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज में क्या डिफरेंस है? मैंने शाम की बजाय डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया. मैंने तो सिर्फ पैसे किसी और को दिए ना, टैक्स तो मुझे देना ही था, शाम को देना था, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट के कहने पे गवर्नमेंट को दे दिया. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फर्क पड़ रहा है. अगर मैं शाम को दे रहा था तो मुझे क्रेडिट मिल रहा था, तो क्या जो गवर्नमेंट को मैं जमा कराऊंगा उसका क्रेडिट मिलेगा? यस, द गवर्नमेंट सेड वेरी क्लियरली कि आप चाहे मुझे जमा कराओगे तो भी हम आपको उसका क्रेडिट देंगे. तो ये तो अच्छी प्रॉब्लम है कि मुझे जमा भी कराने हैं और मुझे क्रेडिट भी मिलेगा. लेकिन शाम को मुझे कितने पैसे देने हैं? शाम को तो मुझे उसकी सिर्फ सर्विसेज के पैसे लेने हैं. और मेरे लिए खर्चा क्या हुआ? खर्चा मेरे लिए जो मैंने सर्विसेज के पैसे पे करे सिर्फ वही खर्चा हुआ. क्यों? जीएसटी जो मैं जमा कराऊंगा उसका तो मुझे क्रेडिट भी मिल जाएगा. द जीएसटी डिपॉजिटेड ऑन रिवर्स चार्ज सर्विसेज इज नो मोर एन एक्सपेंस फॉर मी सिंस आई विल गेट द क्रेडिट ऑफ इट. होप इट इज वेरी मच क्लियर दिस एंट्री. सो इसकी एंट्री क्या होगी? प्लीज सी द एंट्री वेरी केयरफुली बिकॉज काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री में. फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा क्या है? मेरा 50,000 रुपए का खर्चा है. आप जीएसटी के रिसीवेबल और पेबल एंट्रीज को भूल जाइए. मेरा खर्चा 50,000 रुपए है जो मुझे मिस्टर शाम को देना है. तो पहली एंट्री में क्या करूंगा? फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू शाम अकाउंट 50,000 रुपए. क्लियर. 15 तारीख को 20 तारीख को जैसे ही सर्विसेज मिली मैंने एंट्री डाल दी, मेरा 50,000 रुपए का फ्रेट का खर्चा हो गया. शाम आइए, ये मुझसे 50,000 रुपए आप लेके चले जाइए. क्लियर. अब मुझे याद आता है कि इसके ऊपर तो जीएसटी का टैक्स भी जमा कराना था, मुझे टैक्स जमा कराना था और उसका क्रेडिट भी लेना था. तो पहले जमा कराने की एंट्री करते हैं. जमा कराने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. कैसे? मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को आईजीएसटी में क्रिएट करनी है, तो आईजीएसटी के अकाउंट को मैंने पेबल हिट करा. आईजीएसटी पेबल अकाउंट क्रेडिट साथ में, लेकिन ये 2,500 का मुझे वापस में मिल जाएंगे. तो इस अकाउंट से मैंने इसको डेबिट कर दिया, 2,500 से डेबिट. तो आईजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज, आईजीएसटी पेबल अकाउंट क्रेडिट 2,500 rupees. Hope the entry is very very clear to you all. If you have any queries in this entries, please let me know.
We are close with all the entries. These 6 entries I want to discuss with you. Now I will show the implication of these entries in trial balance, profit and loss account, and balance sheet. Kanika, you have a query that credit is allowed on cash basis. This was under the service tax regime. Under the GST, you can take the credit on the same day. There is no such condition in the GST law. We can take the credit on the first day. नो रेफरमेंट का जो है वो सर्विस टैक्स में वो कंडीशन होता था कि आप क्रेडिट टैक्स जब जमा करा देंगे उसके बाद आप क्रेडिट ले सकते हैं. जीएसटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. जीएसटी कहता है कि आप पहले दिन अपनी पेबल भी ले लीजिए और क्रेडिट भी कर दीजिए. द ओनली थिंग इज आपको जो आरसीएम का लायबिलिटी होता है वो कैश में जमा कराना होता है. दैट वी विल लर्न टुमारो. Credit you can take. Credit you the same as liability. Any more queries? I'm moving ahead. Hope everyone is clear with these entries. ये entries करने, hope it is visible to you all. ये entries करने के बाद मेरा ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से नजर आएगा. ट्रायल बैलेंस is nothing but a summarized balances form of all the GLs. आपने आईजीएसटी पेबल का जीएल मेरे साथ देखा, सीजीएसटी पेबल का जीएल देखा, एसजीएसटी पेबल का जीएल देखा. क्रेडिटर्स मींस जिससे मैंने मटेरियल परचेज करा था. मैंने शाम से 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करा था और कार्तिक से, शाम इज माय ट्रांसपोर्टर एंड कार्तिक इज माय जिससे मैंने मटेरियल परचेज करा था. आईजीएसटी रिसीवेबल, एसजीएसटी रिसीवेबल, एसजीएसटी रिसीवेबल. डेटर्स जिसको मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, गुड्स सेल करते, करण, चाइना, जेड एंड वाई. सेंट्रल सेल्स, मेरी सेल्स कितने की हुई है, लोकल सेल्स, सर्विस इनकम, एक्सपोर्ट सेल्स, फ्रेट एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस. समराइज करने के बाद मंथ एंड पे फिगर्स निकल के आती है कि मेरे को आईजीएसटी पे करना है 92,500 रुपए का. दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ 2 ट्रांजेक्शंस, 2,500 का एंड 90,000 रुपए का. 90,000 का इफ यू रिमेम्बर हमने एक सेल करा था, इंटरस्टेट सेल 5 लाख रुपीस का. और सीजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल का फिगर आ गया. शाम एंड कार्तिक को जो पैसे मुझे देने हैं, शाम को 50,000 रुपए देने हैं बिकॉज जीएसटी इंक्लूडिंग इसके अंदर रिवर्स चार्ज में है. कार्तिक को मुझे इंक्लूडिंग जीएसटी पैसे देने हैं. आईजीएसटी रिसीवेबल, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ जो मैं क्रेडिट ले रहा हूँ फ्रेट के अगेंस्ट में. सीजीएसटी रिसीवेबल, एसजीएसटी रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज व्हिच आई मेड फ्रॉम कार्तिक. डेटर्स, करण से 2.5 लाख रुपए लेने हैं, चाइना से 2 लाख रुपए लेने हैं. इट वाज एक्सपोर्ट सर्विसेज. करण को जो मैंने सर्विसेज दी थी वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज थी जिसके ऊपर जीएसटी मुझे नहीं लेना, तो मुझे 2.5 लाख लेने हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी. 11,80,000 रुपए की सेल्स है इंक्लूडिंग जीएसटी. 5,90,000 इंक्लूडिंग जीएसटी ही विल पे. 5 लाख रुपीज ये जितनी भी सेल्स का पार्ट है ये पीएनएल में आता है मेरे. सेंट्रल सेल्स करी है मैंने, लोकल सेल्स की. देखिए आप जीएल जितने मैंने एक्सपेंड करे हैं उतने जीएल से मुझे पता चल रहा है. मैंने 5 लाख रुपए की आउटसाइड दिल्ली सेल करी है, 10 लाख रुपए की मैंने विद इन दिल्ली सेल करी है, मैंने 2.5 लाख रुपए की सर्विस इनकम अर्न करी है, एक्सपोर्ट सेल करी है मैंने 2 लाख रुपए की. फ्रेट एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के इनकर कर है, 1 लाख रुपए की मैंने परचेज करी. माय ट्रायल बैलेंस इज 10. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अब इसी ट्रायल बैलेंस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे भेज दिया, यू आर ऑल एवरी नो वेरी वेल. सेल्स के जितने जीएल आते हैं वो मेरे क्रेडिट में चले जाएंगे, एक्सपेंसेस के जितने जीएल आते हैं वो मेरे डेबिट में चले जाएंगे. माय P&L अकाउंट विल लुक लाइक दिस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कहां से पैसे आए हैं, सेंट्रल सेल्स, लोकल सेल्स, सर्विस इनकम, एक्सपोर्ट सेल. दीज ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी. कोई भी फिगर के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है. टोटल आ गया 19.5 लाख रुपए का. इनको प्रोवाइड करने के लिए मैंने फ्रेट का खर्चा करा, परचेज करी 1 लाख रुपए की, एंड आई डिराइव्ड द प्रॉफिट ऑफ 18 lakh rupees. Figures are much higher. Please don't go in the numbers. You understand the concept. 18 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट आ गया.
and how my balance sheet will look. The profit will be transferred into my share capital of 18 lakh rupees and my current liabilities, मुझे इतने पैसे देने हैं, IGST पे करना है सरकार को 92,500 का, CGST पे करना है 90,000 रुपीज का, SGST पे करना है 90,000 रुपीज का। मेरे को अपने क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं श्याम एंड कार्तिक के 1,68,000 रुपीज। मेरे को मेरे डेटर से पैसे लेने हैं 22,20,000 पे। इफ यू वांट टू नो द बाइफर्केशन ऑफ 22,20,000, दिस इज करंट चाइना Z एंड Y, मुझे इनसे 22,20,000 पे लेने हैं, टोटल कम्स आउट टू दैट। और मुझे GST पे करने के लिए मेरे पास इतना बैलेंस रखा हुआ है, IGST रिसीवेबल रखे हुए 9,000 रुपए का, CGST रिसीवेबल रखा हुआ है 9,000 रुपए का, SGST रिसीवेबल रखा हुआ है 9,000 रुपए का। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो कोई बताओ, बिकॉज आई एम क्लोज विद माई फाइनल अकाउंट्स। दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल लाइफ मूव्स। कैसे मेरे बैलेंस शीट में सेल्स डलती हैं, कैसे मेरे रिसीवेबल्स डलते हैं, एंड हाउ एवरी मंथ आई यूज्ड टू सी माय ऑन द मंथ एंड माय बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल इन्हीं बैलेंस शीट और these figures, with the help of these figures we used to file our GST returns. Clear? Next will be another important and the daily purpose use topic. If any one of you have queries, I am giving you a break of 1 minute. You can post it because I don't want to rush. Anyone have queries, then please post it. Otherwise, we will go ahead and learn the e-way bill concept. Fine, I'm moving ahead. E-way bill, a practical topic and the most litigative topic. जितने ज्यादा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ता है वो ई-वे बिल पे ही लड़ रहा है। ई-वे बिल होता क्या है? जस्ट टू गिव ब्रीफ अबाउट द ई-वे बिल। कभी भी आप कोई गुड्स को अपनी फैक्ट्री से बाहर भेजते हैं, मैंने आपको आज ही एक बात बताई थी, कोई भी गुड्स आपकी फैक्ट्री से बाहर जाएंगे तो एक ना एक डॉक्यूमेंट जरूर क्रिएट होगा, चाहे वो टैक्स इनवॉइस क्रिएट हो, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट हो, चाहे वो डिलीवरी चालान क्रिएट हो। गवर्नमेंट इसके सिवाय एडिशनल टू दिस, not in consideration of this, not against this, but in addition of this, you are required to generate one more document. That document is called e-way bill, and that document is generated only and only after the primary document. Primary documents, tax invoice, bill of supply, or the delivery chalan. Once you generate a tax invoice, bill of supply, or the delivery chalan, you can't move your goods outside the factory gate. You have to create an additional document, and that additional document is called as e-way bill. What's the need of e-way bill? What people were doing, they were issuing invoices instead of delivering the goods. So government have tried कि आप जैसे ही ई-वे बिल क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम आपसे डिटेल मांगेंगे ट्रांसपोर्टर की, कि आपने कौन सी गाड़ी में वो मटेरियल भेजा है, कितने रुपए का मटेरियल भेजा है, इनवॉइस की डिटेल क्या है, सो दैट हम ये पता कर सकें कि जब भी आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं आप मटेरियल की मूवमेंट भी एक्चुअली में कर रहे हैं। जस्ट टू रिड्यूस द इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी रोकने के लिए उन्होंने ई-वे बिल का कंसेप्ट लेके आए। सो व्हेनेवर आपसे आज के बाद कोई पूछता है कि कोई मटेरियल मेरी फैक्ट्री से बाहर जा रहा है तो मैं इनवॉइस पे भेज दूं क्या, जस्ट स्टॉप हिम हियर एंड आस्क
just stop him there and ask कि you cannot send goods outside the factory unless one more additional document is there in your file, and that additional document is an e-way bill. What is an e-way bill? E-way bill is a document need to be generated before the moment of the goods initiate. Do everyone needs to create a e-way bill? Yes, everyone is required to create an e-way bill. And क्या वो गुड्स में अगर फ्री में सेल कर रहा हूं तो भी क्या वो ई वे बिल गुड्स ई वे बिल क्रिएट करना होगा? यस, ई वे बिल नीड टू बी क्रिएटेड इन केस ऑफ डिलीवरी चालान आल्सो. द गवर्नमेंट हैज मैंडेटरी मेंशन्ड दैट ई वे बिल डिलीवरी चालान में भी क्रिएट होगा. टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई में तो होना ही है जहां पर टैक्स लगता है, या फिर सॉरी आई रिपीट माय वर्ड्स, आई करेक्ट माय वर्ड्स, डिलीवरी चालान में तो क्रिएट होगा ही होगा, होना करना ही है. टैक्स इनवॉइस में भी होगा. बिल ऑफ सप्लाई में ई वे बिल क्रिएट नहीं होता है. देयर इज एन एग्जेम्पशन. जहां पर गुड्स पे टैक्स नहीं लगता है वहां पर ई वे बिल क्रिएट नहीं होता है. और गुड्स पे टैक्स कब नहीं लगता है? जब बिल ऑफ सप्लाई बनता है. क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई कब बनता है? ऐसे आइटम्स पे बनता है जहां पर टैक्स नहीं लगता है. तो टैक्स इनवॉइस या फिर डिलीवरी चालान क्रिएट होगा तो ई वे बिल क्रिएट होगा ही होगा. सो प्लीज लर्न द कंसेप्ट ऑफ ई वे बिल विद मी. फर्स्ट पॉइंट सेज, रीड विद मी itself, सप्लाई ऑफ गुड्स. ये सर्विसेज के केस में नहीं लगता, बिकॉज सर्विसेज की कोई मूवमेंट नहीं होती है, गुड्स की मूवमेंट होती है. सप्लाई ऑफ गुड्स मींस जहां पर आप सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा. फॉर रीजन अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स मींस डिलीवरी चालान वाले केस, उस केसेस में भी आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा. इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. आप मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. अभी हम सेल की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा परचेज भी करेंगे. तो परचेज कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि जीएसटी लॉ में अनरजिस्टर्ड है, उसकी मूवमेंट शुरू होने से पहले आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा. प्लीज लिसन इट. सप्लाई अदर देन सप्लाई, परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये तीनों में से कोई भी सिनेरियो में अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा. क्वांटम, क्या ई वे बिल 2 रुपए का आइटम मेरे किराने की दुकान से लेके आ रहा हूं तो क्या किराने की दुकान वाला वो चाउमीन का पैकेट लेके आता हूं तो चाउमीन के पैकेट के ऊपर ई वे बिल लगाएगा? नो. गवर्नमेंट हैव गिवन अ थ्रेशोल्ड. गवर्नमेंट सेज जहां पर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 50,000 रुपए क्या से ज्यादा है, जब आपको ई वे बिल क्रिएट करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, whether 50,000 including GST or excluding GST. It is total value. Total value means taxable value plus GST. In few of the states, the limit has been increased from 50,000 to 1 lakh rupees. So we need to go state by state कि कौन सी स्टेट में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. So अगर आपके गुड्स का मूवमेंट 50,000 से ज्यादा है, the value of the goods is exceeding 50,000 rupees, then you are liable to create an e-way bill. But the government always provide an option. कभी भी आप रोकेगा नहीं, आपको ई वे बिल क्रिएट करने का अलाउ करेगा. तो बट यू हैव एन ऑप्शन, गवर्नमेंट विल नॉट पेनलाइज यू ऑन दैट. वैलिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ई वे बिल क्रिएट होता है कब? जब गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकलता है. इनवॉइस कब क्रिएट हो सकता है? इनवॉइस कुड बी क्रिएटेड एनी टाइम बिफोर दैट. इनवॉइस की भी लिमिट है कि बिफोर रिमूवल ही क्रिएट होगा. अब जैसे ही आपने ई वे बिल क्रिएट कर दिया, ई वे बिल क्रिएट करते हैं, हम अभी एक ई वे बिल क्रिएट भी करके देखेंगे. ई वे बिल क्रिएट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टर का आईडी आता है, ट्रांसपोर्टर का हमें डिटेल्स डालना होता है, गाड़ी का नंबर बेसिक चीज होती है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको गुड्स भेजने कहाँ है उसके अकॉर्डिंग उस ई वे बिल की वैलिडिटी रहेगी. आपने ई वे बिल आज क्रिएट कर दिया तो इट विल रिमेन वैलिड till the time depending upon the location where you have to send the goods. अगर वो लोकेशन विद इन 100 किलोमीटर है तो ई वे विल रिमेन वैलिड फॉर 1 डे. फॉर एवरी नेक्स्ट 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, ई वे विल रिमेन वैलिड फॉर 1 एडिशनल डे. फॉर एग्जांपल, आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली टू हरियाणा एंड वी हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम पिन कोड टू पिन कोड. ये जब ई वे बिल पे जाएंगे तो पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस निकालता है. If that distance is 350 kilometer, then e-way bill will have a validity of 4 days. Another example,
if I go from Delhi to Punjab, the distance is 600 kilometer. The EV bill will remain valid for 6 days. Next question comes to your mind. मैंने दिन में 2 बजे EV bill बनाया है, मुझे 150 किलोमीटर जाना है. EV bill will remain valid for 2 days. तो will it expire on the day? 2 दिन बाद दिन में 2 बजे एक्सपायर हो जाएगा? No. EV bill will remain valid till 12 in the midnight. 2 दिन जब आपके खत्म हो रहे हैं, उसके रात के 12 बजे तक EV bill वैलिड रहता है. तो उस टाइम टू टाइम मैच नहीं होता है, वो रात के 12 बजे तक EV bill वैलिड रहता है उस डेट के. हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली. EV बिल हर केस में जनरेट होगा गुड्स की, चाहे वो सेल है चाहे वो अदर देन सप्लाई है, जहां पर टैक्स लगता है. बिल ऑफ सप्लाई के केस में EV बिल जनरेट नहीं होगा, जहां पर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, 50,000 या 1 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस. गवर्नमेंट ने इसका फॉर्म दे दिया EV बिल EWB 01. इस फॉर्म में आपको EV बिल क्रिएट करना होगा. EV बिल जनरेट कर दिया आपने, इनवॉइस जनरेट कर दिया, EV बिल जनरेट कर दिया. EV बिल जनरेट करते ही आपको समझ आ गया कि तो गुड्स बाहर जाने ही नहीं है, तो यू कैन कैंसिल द EV बिल within 24 hours in case no movement is done but EV bill generated. EV bill बन गया है, बाद में आपको समझ आता है कि EV bill गलत बन गया है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रिक्ट टाइम है 24 hours का, उसके within 24 hours you can change the EV bill. As I mentioned you earlier, EV bill के अंदर आपको ट्रक का नंबर डालना होता है. जैसे ही कभी आपने ट्रांसपोर्टर को अपना मटेरियल हैंडओवर कर दिया, आपको दिल्ली से शाम मटेरियल भेजना था, ट्रांसपोर्टर ने दिल्ली से आपके यहाँ फैक्ट्री से मटेरियल उठा लिया, इन मिड ऑफ द वे बिहार में जाके उसका ट्रक खराब हो जाता है, ट्रक वो मटेरियल उस ट्रक से निकाल के दूसरे ट्रक में डाल देता है. देन द ट्रांसपोर्टर नीड टू मैंडेटरली अपडेट दैट EV बिल. अपडेट करना होगा उस EV बिल को एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वेयर एवर द ट्रक नंबर और द कन्वेंस नंबर चेंजेस. जब भी कोई मूवमेंट ऑफ कैरी कन्वेंस चेंज होगा तो उसको EV बिल पे उसका नंबर अपडेट करना होगा. नेक्स्ट सिनेरियो, 2 डेज का वैलिडिटी था, रात को आज 12 बजे EV बिल एक्सपायर होना था. इन मिड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ट्रक खराब हो गया. एक बार किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में EV बिल बन जाता है तो या तो आप 24 आवर्स में कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज वो EV बिल आप उस इनवॉइस के रिगार्ड में दोबारा नया EV बिल नहीं बना सकते. इनवॉइस क्रिएट होने के बाद नया EV बिल उस इनवॉइस के अगेंस्ट में नहीं बना सकते. प्रॉब्लम क्या आई इंडस्ट्री को, इनवॉइस बन गया, मटेरियल बाहर निकल गया, 3 दिन की वैलिडिटी थी, बट मिड ऑफ द वे में EV बिल एक्सपायर हो गया बिकॉज ट्रक खराब हो गया था. तो गवर्नमेंट हैव गिवन अस बेनिफिट कि एक्सटेंड, आप EV बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं डे बाय डे, फॉर एवरी डे, फॉर ईच डे. और एक्सटेंड कैसे करेंगे, आपको पोर्टल पे जाके एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको उसको प्रेस करना होगा, एक नया फ्रेश EV बिल विद एक्सटेंडेड वैलिडिटी निकल के आ जाएगा. बट दे हैव गिवन द लिमिट कि ऐसा नहीं आप कभी भी कर सकते हैं, विद इन 8 आवर्स ऑफ इट्स एक्सपायरी. 8 घंटे के एक्सपायरी के अंदर अंदर आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए. लास्ट केस, नो EV बिल इज रिक्वायर्ड इन केस गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है GST में तो कोई EV बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है. We will learn the procedure for EV bill. आपको सबसे पहले कोई भी आप GST का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उसके बाद आपको अगर गुड्स में डील करते हैं तो evbill.gst.gov पे भी रजिस्टर कराना होता है. उसके रजिस्टर कराने में जैसे ही आप GST नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP आएगा. OTP डालते ही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा. आपको ऑप्शन देगा यूजर आईडी रख दीजिए और पासवर्ड रख दीजिए. आई एम नॉट टीचिंग यू द हाउ टू रजिस्टर ऑन द EV bill. आई एम टीचिंग हाउ टू क्रिएट एन EV bill. Once you are registered on the EV bill, आप यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके EV bill के पोर्टल पे लॉग इन करेंगे. प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स ऑफ एन इनवॉइस और डिलीवरी चलान. आपके पास आई बिलीव जब भी EV बिल क्रिएट करेंगे उससे पहले टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चलान आपके हाथ में होगा. उस टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चलान की डिटेल्स EV बिल के फॉर्म EWB 01 में डालेंगे. EWB 01 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B. पार्ट ए के अंदर इनवॉइस की डिटेल आती है और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है.
जैसे ही आप इनवॉइस की डिटेल डालेंगे वो पार्ट बी में भेज देगा। फिल दी पार्ट बी, अनलेस पार्ट बी इज फिल्ड ईवी बिल जनरेटेड इज इनवैलिड। काफी बार लोग क्या करते हैं, पार्ट ए की डिटेल निकाल के अपना ईवी बिल प्रिंट निकाल लेते हैं, बट वो ईवी बिल जनरेट करा, प्रिंट निकालना या ना निकालना, इट इज बोथ इक्वल, बिकॉज जब तक आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डालेंगे तो ईवी बिल वो जनरेटेड माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन सबमिट टू जनरेट एन ईवी बिल। आपका ईवी बिल आपके हैंड में होगा, हाथ में होगा। ईवी बिल जनरेट होने के बाद या तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, या उसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अपडेट मीन्स ट्रक का नंबर, यू कैन चेंज द ट्रांसपोर्टर डिटेल्स। एक्सटेंड मीन्स वैलिडिटी एक्सटेंड करनी, तो इट इज अ गिवन टाइम ऑफ 8 आवर्स। अगर रिजेक्ट करना है, ये मैंने आपको पॉइंट अभी तक कवर नहीं करा है, जैसे ही आप ईवे बिल क्रिएट करते हैं तो वो उसके अंदर जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, जिसको सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल, उसके पास भी डिटेल चली जाती है। अगर वो पर्सन कहता है ये सप्लाई वो मेरे को नहीं कर रहा है, किसी और को कर रही है, मुझे गलत दिखा रहा है, तो रिसिपिएंट के पास ऑप्शन होता है, वो 72 आवर्स में उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो रिजेक्ट कर देगा तो ईवे बिल वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन टू रिजेक्ट द 72 आवर्स। So basically now we will learn how to generate an e-way bill online. I will show you the e-way bill portal. Just wait a second. I'm just logging onto GST portal. Just wait a minute.